الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ محترم ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے قربانی کے حوالے سے ایک سوال کیا کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، کیا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس کے اندر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے مسائل وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ جس کے اندر لوگ دانستہ طور پر شرارتاً مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح گائے کی قربانی درست ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ گائے الگ ہے اور بھینس الگ ہے، کیونکہ بھینس کی قربانی دور نبوت کے اندر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ یہ جانور وہاں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ جس وقت فتوحات اسلامیہ شروع ہوئیں اور بہت سارے علاقے اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہوتے گئے، تو وہاں نئے جانور، نئے قسم کے مویشی آتے گئے، جس میں بھینس بھی شامل ہے۔ کیوں کہ یہ ایک عجم علاقے کا جانور ہے، عرب میں یہ نہیں پایا جاتا تھا۔ جب اس کی معلومات وہاں تک پہنچی تو اس وقت علماء اکرام یعنی تابعین نے، تبع تابعین نے اس کو گائے کے اندر ہی شامل کیا اور یہ بیان کیا کہ بھینس گائے کی قسم کا ہی ایک جانور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ قلت الجوامیس تجزأ عن سبعہ، کہ کیا جاموس یعنی بھینس کے بھی 7 حصے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا اعرف خلاف ھذا، مجھے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں سنائی دی آج تک کہ اس میں بھی کوئی اختلاف ہے کہ اسی طرح گائے کے بھی 7 حصے ہیں اور بھینس کے بھی 7 حصے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو 3 قسم کے دلائل سے یہ بات ثابت کریں گے کہ گائے اور بھینس ایک ہی جانور ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر اہل لغت، دوسرے نمبر پر اجماع تابعین اور تیسرے نمبر پر فقہائے کرام کے اقوال۔ سب سے پہلے ناظرین، ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ اہل لغت کیا فرماتے ہیں۔ اہل لغت وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عرب ڈکشنریاں بنائی۔ مشہور عربی دان جن میں شیخ صالح المنجد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المنجد صفحہ 101 کے اندر الجاموس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ضرب من کبار البقرہ، کہ بھینس بڑی گایوں کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد معجم الوسیط صفحہ 134، اس کے اندر فرمایا کہ الجاموس یہ بن جنس البقر، کہ یہ بقر یعنی گائے کی جنس میں سے ایک پالتو جانور ہے۔ ناظرین، معجم الرائد کا ما فی المعانی میں ہے کہ جاموس نوع من البقر ضخم الجثہ جمع جوامیس، کہ بھینس بھاری جسم والی گائے کی ایک قسم ہے۔ لسان العرب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ مغرب وغیرہ میں بھی بھینس کو گائے کی قسم مانا ہے۔ اسی طرح المغرب فی ترتیب المغرب کے اندر الجاموس نوع من البقر، وہاں بھی یہی بیان فرمایا گیا لسان العرب جلد 2 صفحہ نمبر 43 کے اندر کہ الجاموس نوع من البقر، کے بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ لغت کی مشہور کتاب تاج العروس کے اندر وہاں پر بھی بھینس کو گائے کی قسم ہی مانا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اہل لغت کے اقوال۔ اب ہم چلتے ہیں اجماع پر، کہ جب بھینس کا وجود سامنے آیا تو اس وقت کے جو تابعین اور علماء کبار اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاجماع لابن المنذر فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمُ الْجَوَامِيس حُكْمُ الْبَقَرِ، اس پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ اس کے بعد بدایت المجتہد، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء علی جواز الضحایا من جمیع البہیمہ، فرماتے ہیں کہ تمام ایسے جانوروں کے ذبح کرنے پر یعنی قربانی کرنے پر علماء کرام کا اجماع ہے جو بہیمہ کی تمام اقسام ہیں، اور بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں ہونا اظہر من الشمس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس قسم کے اختلاف کا کوئی علم نہیں، بلکہ اس پر تو اجماع ہے۔ یہ مسائل الامام احمد و اسحاق ابن راہوے۔ اب اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام محدثین اکرام کے اساتذہ کے اندر آتے ہیں۔ حافظ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں المغنی لابن قدامہ، ہمیں اس مسئلہ یعنی بھینس کی قربانی میں اختلاف کا علم نہیں ہے، اور ابن منذر نے فرمایا ہے کہ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اس لیے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ ناظرین، محدثین اکرام کے اندر امام مالک بن انس
रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर फरमाते हैं कि इन्नमा हिय बकरुन कुल्लहा, कि ये भैंस जो है ये मुकम्मल तौर पर गाय ही है। किताबुल अमवाल लि अबी उबैद, इसके अंदर फरमाया, इनका कौल जिक्र किया गया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कि गाय और भैंस बराबर हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुहसबुल जवामीस माल बकर, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर हज़रत इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जिक्र फरमाया गया कि भैंसों को गाय के साथ ही शुमार किया जाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह फरमाया कि अल जवामीस बिमंज़िलतिल बकर, मुसन्नफ इब्न अबी शीबा के अंदर, कि भैंस भी गाय का एक दर्जा है, यानी वो भी वही चीज़ है। अब फुकहा के जो अक़वाल हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो गाय है ये वलमाज नौ मिनल गनम, कि मेंढा जो है ये बकरियों की किस्म है, वल जामूस नौ मिनल बकर, और जो भैंस है वो गाय की एक किस्म है। इसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि फ़युज़म्मुल जामूस इलल बकर वलमाज इलल गनम, के भैंस को गाय की तरफ ले जाया जाता है और मेंढे को बकरी समझा जाता है। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक और कौल भी है, फरमाया कि गाय के अंदर ही भैंस को शामिल किया जाएगा, और आगे फरमाया कि वल अस्लु फीहा ज़िब्ह, कि ये कौल इसलिए बयान किया गया है कि इससे मुराद ज़बाह यानी कुर्बानी है, इससे मुराद कुर्बानी है, और ये हाशियतुस सावी के अंदर लिखा गया है। इसी तरह शवाफी जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो भी यही फरमाते हैं, वल बकर व यशमिलुल जामूस, के गाय के अंदर भैंस भी शामिल है। आगे एक मसला उन्होंने बयान किया कि अगर किसी ने ये कसम खा ली कि मैंने अगर गाय का गोश्त खाया तो मैं ऐसा हो जाऊं, या जो भी कसम उसने खाई, तो वो फरमाते हैं कि अगर उसने गाय के गोश्त के अलावा भैंस का गोश्त भी खा लिया तब भी वो हानिस हो जाएगा, क्योंकि इनके गोश्त का हुक्म एक ही है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल हम पहले भी बता चुके हैं कि उनसे सवाल हुआ कि 7 हिस्से क्या भैंस के अंदर भी उसी तरह होंगे जैसे गाय के अंदर होते हैं, तो उन्होंने फरमाया हाँ, हमें तो आज तक ऐसा कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया कि जिसमें भैंस को अलग किया गया हो गाय से। इसी तरह अब जो एतराज़ करने वाले उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो गैर मुक़ल्लिद उलमाए किराम हैं उनके अक़वाल आपको हम बयान करते हैं। नाज़रीन, मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी जो गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े शेख हैं, वो बयान करते हैं कि मुसन्ना के हवाले से जब पूछा गया कि 2 दांत बकरी, तो वो फरमाया कि बकरी 1 साल यानी 1 साल पूरा और दूसरा साल शुरू हो, गाय और भैंस का 2 साल यानी 2 साल पूरे हो और तीसरा शुरू हो। तो इसमें वो बयान करते हैं कि वयदखुलु फिल बकरिल जामूस लिअन्नहु मिन जिन्सिह, कि ये जो गाय है, ये भैंस जो है ये गाय की जिन्स में से ही है। उन्होंने वहाँ पर भैंस का जिक्र भी इरशाद फरमा दिया। इसके बाद मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब इनके जो है वो ये उनसे सवाल किया गया क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तो उन्होंने फरमाया कि जायज़ है, क्योंकि भैंस और गाय का एक ही हुक्म है, फतावा सत्तारिया जिल्द नंबर 3 के अंदर। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद के मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा सनाइया में बयान करते हैं, कुरान पाक की ये आयत जो है कुल ला अजिदु फीमा उहिया के अंदर, इसमें तशरीह में लिखते हैं कि हिजाज में भैंस का वजूद ही नहीं था। ये बात हम भी बयान कर रहे हैं, और ये जो उनके गैर मुक़ल्लिद उलमाए किराम है वो भी ये कहते हैं कि हिजाज में भैंस का वजूद ही नहीं था, इसीलिए कुर्बानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हुई और सहाबा किराम ने भी नहीं की। लेकिन अगर इसको जिनसे बकरा से माना जाए, जैसा कि हनफिया का क़ियास है कमा फिल हिदाया, या अमूम बहीमतुल अनाम पर नज़र डाली जाए, तो इसका हुक्म जो है कुर्बानी के जवाज़ की इल्लत के लिए काफ़ी है। ये कहाँ है? फतावा सनाइया के अंदर है। इसी तरह फतावा उलमाए अहले हदीस के मुअल्लिफ जो है मौलाना अबुल हसनात अली मोहम्मद सईदी जो है, उनसे भैंस की कुर्बानी के जवाज़ के सिलसिले में सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जायज़ है, चूँकि गाय और भैंस का एक ही हुक्म है। और बेआईन ही यही जवाब मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब ने भी दिया। ये जुमला उन्होंने लिखा है फतावा उलमाए अहले हदीस के अंदर। मौलाना अब्दुल कादिर हिसारवी रहमतुल्लाह अलैह साहिवाल वाले वो लिखते हैं कि खुलासा बहस ये है कि बकरी गाय की कुर्बानी मसनून है, ताहम भैंसा की कुर्बानी भी जायज़ और मशरू है। वो कहते हैं कि नाजायज़ कहने वाले का मसलक दुरुस्त नहीं, फतावा हिसारिया और मकालात इल्मिया के अंदर वो बयान करते हैं। इसी तरह अहले हदीस उलमा में से हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई, उनका फतवा ये है फतावा इल्मिया के अंदर, ऊँट, गाय, भेड़, बकरी
की कुर्बानी किताब व सुन्नत से साबित है और ये बिल्कुल सही है कि भैंस गाय की एक किस्म है और इस पर आइम्मा इस्लाम का इजमा है। इसी तरह मुहद्दिस अल-असर हाफिज गोंदलवी फरमाते हैं कि भैंस भी बकर में शामिल है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। हफ्त रोज़ा अल-एहतसाम लाहौर के अंदर ये शामिल किया गया। काजी मोहम्मद अब्दुल्ला MA LLB खानपुरी भैंस की कुर्बानी के जवाज़ पर तफसीली बहस करते हुए आखिर में लिखते हैं, बस खुलासा ये है कि भैंस मुसल्लमा तौर पर गाय की एक किस्म है। भैंस गाय से ज़्यादा कीमती है और जिसामत भी आम गाय से बड़ी होती है, इससे नफ़ा बमुकाबला आम गाय के ज़्यादा है, इसलिए इसमें सवाब भी ज़्यादा है। कम अज़ कम भैंस की कुर्बानी के जवाज़ में कोई शक नहीं। नाज़रीन, इसी तरह बेशुमार दलीलें हैं जो आपको पेश की जा सकती हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से हमने वो चीज़ें मुख्तसर करके आपको बयान किया है। 4 चीज़ें बयान कर दी कि लुगत में भी भैंस और गाय एक है। इसके अलावा ताबईन के दौर में इत्तफाक इजमा भी इस बात पर है कि ये भैंस और गाय एक ही है। इसी तरह और जो फुकहा हैं, चारों फुकहा के नज़दीक भी भैंस की कुर्बानी जायज़ है और जो इनके चीदा उलमाए अहले हदीस हैं उनके अकवाल भी हमने बयान कर दिए कि उनके यहाँ भी ये भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अब जो लोग इसके अंदर रखना डालने की कोशिश करते हैं उनको चाहिए कि इसका अच्छी तरह से मुताला करें कि भैंस का हुक्म एक ही है। अगर आप लोग ज़ाहिरी तौर पर ये हुक्म लगा देते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं और भैंस की खालें आप अपने हर मदारिस के अंदर जमा करते हैं, तो ये एक ना दो रुख हो गए तस्वीर के कि या तो आप भैंस की कुर्बानी की जो खालें हैं वो भी वापस कर दिया करें, उनको कहा करें कि जिनकी कुर्बानी सही नहीं है तो हम इनकी भैंसों की जो खालें हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उनकी खालें वसूल कर लेते हैं और कुर्बानी में आप रखना डालते हैं। इसलिए चाहिए कि आप थोड़ा सा गौर करें इस मसले के ऊपर। और नाजरीन, अगर आप हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं या कोई किसी किस्म की अहादीस के हवाले से या तफसीर के हवाले से आप पूछना चाहते हैं तो मदरसा इस्लामिया ह्यूस्टन में तशरीफ़ लाएँ या हमारे जो दिए गए नंबर है इन पर हमसे रब्ता करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।